دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہیلو جی نعمت اللہ صاحب بول رہے ہیں آپ؟ جی 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 میں محمد رفیع بول رہا ہوں دہلی سے، آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں قادیان سے۔ قادیان سے، جی اچھا جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ روحانی خزائن میں جو ہے ایک جگہ یہ لکھا تھا کہ مسیح جو ہوگا وہ 14ویں صدی کے سرے پر آئے گا، ایسا جو ہے احادیث صحیحہ میں آتا ہے، ایسا لکھا ہے کیا؟ پہلے تعارف جی کرائیے، پہلے آپ کے بارے جی بتا تو دیا میں نے، محمد رفیع قادری، محمد رفیع بول رہا ہوں میں دہلی سے۔ ہاں میں جی کہوں کہ میں نعمت اللہ نواز کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ کرناٹک سے؟ میرا سوال ابھی آپ نے بولا قادیان سے۔ بات تو سنیے نا پہلے، ہاں سنائیے۔ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں آپ۔ میں کہوں گا کہ میں کرناٹک سے میرا تعلق ہے، میں اس وقت قادیان میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھگوت گیتا کے 6-7ویں شلوک میں جو ہے نا آنے والے امام مہدی کا ذکر ہے، کس میں؟ کہ مسلمان اس کو مانتے ہیں نہیں؟ کس میں ذکر ہے؟ بھگوت گیتا میں۔ بھگوت گیتا میں؟ اچھا تو بھگوت گیتا لکھنے والے سے پوچھا ہے اس بارے میں؟ بھگوت گیتا لکھنے والوں سے تو ضرور نہیں، آپ قرآن حدیث مانتے ہیں یا گیتا رامائن مانتے ہیں؟ ہم قرآن حدیث یہ ہر وہ چیز مانتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے کہا۔ اچھا تو پھر اس میں گیتا رامائن سے بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اس میں نے تو بولا ہی نہیں کہ گیتا میں ایسا لکھا ہے، رامائن میں ایسا لکھا ہے، وید میں لکھا ہے، پران میں لکھا ہے، اپنشد میں لکھا ہے۔ نہیں تو میری یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے نعمت اللہ صاحب کہ آپ گیتا کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ گیتا پر تو ہمارا کوئی بات ہی نہیں ہونی، کوئی ہماری کوئی ہے نا بات۔ اصل میں پہلے آپ سننے کی عادت پیدا کرو، اس کے بعد جی سنوں گا میں، لیکن آپ جو ہے نا مطلب بالکل ہی آپ مطلب ایک دم ٹریک سے بالکل باہر جا رہے ہیں نا آپ۔ یا تو آپ یہ بولیں یا تو آپ یہ بولیے کہ ہاں جی میں نے آپ کو جو ہے گیتا کے حوالے سے کوئی الزام آپ کے اوپر لادا ہے، تب تو آپ مجھ سے بات بھی کریں اس کے تعلق سے۔ کتاب کا تو ہم سے کوئی لین دین ہے ہی نہیں ہے۔ میں دلی سے ہوں، سوال کرنا شروع کیا آپ نے، ٹھیک ہے جی پہلے اچھا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف نہیں ہے، ایک دوسرے کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ایسا ہے نا تعارف کرے بات کروں میں بھی تو ویسے جواب والی بات آپ ایک بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک مسیح پیدا ہو چکا اور وہ قادیان میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بالکل۔ وہ کرشنا کا بھی اوتار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بروز ہے، ان کا ذل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مسیح بھی ہے، مہدی بھی ہے نا؟ بالکل۔ اور مہدی کے بارے میں خود جو ہے روحانی خزائن میں بھی لکھا ہے کہ مہدی کے آنے کے بعد جو ہے دنیا میں شیر اور بکری جو ہوں گے اکٹھے پانی پئیں گے، ہے نا؟ تو یہ سب باتیں لکھی ہیں، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک قادیانی نے ایک گروپ میں کہا تھا کہ بھائی تم جا کے سرکس میں دیکھ لو، سرکس میں جو ہے شیر بکری اکٹھے مل جاتے ہیں تمہیں، یہاں پر جو ہے معاذ اللہ وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے۔ تو بھائی کیا حدیثوں میں جو بات تھی وہ سرکس کی بات تھی کیا؟ بڑبڑانے سے تھوڑی کوئی بات کا جواب دیا جا سکتا ہے، پہلے آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یہ بتائیے۔ ارے بھائی اہل سنت سے ہوں میں، اہل سنت سے، اہل سنت الجماعت سے، یعنی آپ جی ہاں جی ہمارے بانی کوئی نہیں ہے، ہم جی ہمارے بانی آقا کریم علیہ السلام ہے، ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، احمد رضا اور ان کے بعد ائمہ محدثین ہیں۔ احمد رضا اپنے زمانے کے ایک عالم دین ہیں۔ اچھا اشرف علی جی تھانوی صاحب کون ہے؟ اشرف علی تھانوی بھی اپنے زمانے کے مولوی ہیں۔ بہشتی زیور ان کی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی کتابوں کو تو آپ لوگ مانتے ہو بہت۔ نہیں ایسا ہے، دیکھیے بہشتی زیور کا سے مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اتنا کوئی۔ اب بہشتی زیور کے حوالے آپ کو میں گن کے بتاؤں گا، ایسا ہے دیکھیے جواب دو، ایسی باتیں نہیں چلتی ہیں جی نہیں جناب، دیکھیں نعمت اللہ صاحب دیکھیے بات ایسی ہے کہ میں نے بہشتی زیور نہیں پڑھی، میں نے کلیئرلی بول دیا، ٹھیک ہے نا بھائی، میں نے پڑھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل سنت الجماعت کا شخص نہیں پڑھتا ہو تو واقعتاً اسے حکمت کی باتیں جو ہے نا اشرف علی تھانوی صاحب کی نظر نہیں۔ دیکھیے ایسا ہے نا، دیکھیے یہ تو آپ اپنے طرف سے اصول بنا رہے ہیں نا آپ، ہے نا؟ دیکھیے فقہ کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، فقہ کے اوپر، ٹھیک ہے، جن میں قدیم بھی ہیں اور جدید بھی ہیں بہت ساری، تو ہر انسان نے ہر کتاب پڑھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اچھا سمجھے بات کو؟ جی
अब मान लीजिए जैसे आप हैं, आपने अगर रूहानी खजाइन नहीं पढ़ी तो मैं इसके लिए आपको मुजरिम नहीं कह सकता हूँ। आप ये बोल दीजिए भाई मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में, मैं जो है इस बारे में आपको पता करके बता दूंगा, इस पर जो है बात खत्म हो जाती है। अब आपको इजाजत है सवाल पेश करने की? जी, तो सवाल तो मेरा पहले हो ही चुका है कि जैसा कि आपके मिर्जा साहब ने लिखा है कि मसीह जो होगा वो 14वीं सदी के सिरे पर आएगा, जैसा कि अहादीस सहीहा में आता है ना। तो अब ये है कि अहादीस सहीहा जो है ये कम से कम जमा का सीगा है, और जमा का सीगा कम से कम 3 पर तो इसका इतलाक होता है। तो 3 जो है सहीहुल इस्नाद अहादीस, आप हमें बता दीजिए कि हाँ जी 14वीं सदी के सिरे पर जो है मसीह आएगा और उसकी फला फला निशानियां होंगी, है ना। तो आप जरा हमें बता दीजिए वो। आप ज़बानी तौर पर या बजरिया फोन आपको सारी बातें बताई नहीं जा सकती, ठीक है। और तो ऐसा है, देखिए सुनिए हजरत सुनिए निमतुल्ला साहब सुनिए। अच्छा छोटी सी बात में सुन लीजिए, मैं सुनिए, इसके बाद मैं खामोश रहूंगा, फिर आप बोलेंगे कि जो बात आप फोन पर बता सकते हैं वो फोन पर बता दीजिए, और जो बात आप कहेंगे भाई मैं आपको व्हाट्सएप पर बाद में भेज दूंगा, तो उसके लिए आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। जितना आप फोन पर बोल सकते हैं वो बोल दीजिए, बाद में जब आपको वक्त मैसर हो आप मुझे व्हाट्सएप पर वो हवाला जात भेज दीजिएगा, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी बात है मेरी। अब आप बोलिए। मेरे प्यारे मोहतरम, बोलिए, सुनाइए। आप मुझसे इस बात का दरियाफ्त किया कि आपके पास वक्त है, आप क्या कर रहे हैं। इंसान किसी ना किसी काम में नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, मैंने आपके ऊपर कोई जबर नहीं किया। आप बोल दीजिए आपके पास वक्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फोन रख देंगे, उसमें क्या है। बात सुनिए, सुनाइए। एक वक्त जो है ना मुकर्रर करें, इंशाल्लाह उस वक्त बात करें। अरे तो जनाब आप इतनी बात कर रहे हैं, इतने में तो आप हदीसों के हवालियात की लाइन लगा देते। आपने इतनी बातें करी हैं जो, या तो आप ये बोल दीजिए आपको अभी बात नहीं करनी है, बाद में करें बात। आपको तहकीक की बहुत जल्दी है या किसी को हराने? नहीं जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। आप या तो ये बोल दीजिए भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में फोन करना, बात ही खत्म है बस। तो इसका तरीका ये होता है, जब अपने आप को एक दूसरे तारुफ कराते हैं, एक दूसरे के बारे में। जनाब आप जो इतना जो आप भाषण दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इतने में आप हवालाजात पेश कर दीजिए, या तो आप फोन रख दीजिए, आपके पास अभी फिलहाल दलील नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बाद में फोन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप रफी क्या करते हैं, सबर का दामन थामे ना। नहीं सबर है मुझे, मैं जब भी कह रहा हूँ ना, आप या तो आप जवाब दे दीजिए, या तो आप ये बोलकर फोन रख दीजिए कि आपके पास अभी वक्त नहीं है। बस 2 बातें हैं, तीसरी बातें नहीं सुननी मैंने फालतू की। बस अरे भाई यानी दावा भी आप जवाब देंगे या फोन रखेंगे? आप जवाब देंगे या फोन रखेंगे? आप जवाब देंगे फोन रखेंगे? चाहते हैं जो है ना वही हो जाए, ऐसे थोड़ी मुमकिन होता है। तो चलिए फिर तो आप बताइए ना, फिर आप क्या करेंगे? एक वक्त निकालता है इंसान है उसमें। अरे तो जनाब मन तो जहन को जो ना ठंडा रखता है। अरे जनाब मेरा जहन बहुत ठंडा है, होती है जल्दबाजी। अरे जनाब मन मेरा जहन बहुत ठंडा है, समझे जी, आप यकीन मानिए। जल्दबाजी होती है अगर आप रिकॉर्डिंग, वरना अब तक तो, अरे रिकॉर्डिंग तो भैया आजकल सब लोग करते हैं, समझे जी भाई, क्या करें, झूठों का पर्दाफाश करना पड़ता है ना। हाँ सही बात है, इसीलिए है ना। बातें आपके पास। कोई झूठा जो है अपनी किताब में लिख गया। बहुत चल पड़ा है, रोजाना मुझे जी हाँ, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। मार्केट में से आते हैं, सूरत से आते हैं। अब देखिए, अब आपकी बात जो है ना, अब मुझे बात आपकी पसंद नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि आप बिजी भी हैं और बिजी, तो जनाब मन मैंने आपको बोल तो दिया है ना, आपको मैंने बोल तो दिया ना, अगर आपके पास अभी जवाब है तो आप अभी दे दीजिए, अभी जवाब नहीं है तो आप मुझे बोल दीजिए भाई मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, बस बात खत्म। देखिए किसी शख्स को आप इस तरह से बॉन्ड नहीं कर सकते। मैं बाउंड नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये बताइए आप क्या चाहते हैं। चलिए आप बताइए आप क्या चाहते हैं, ये बताइए। आदाब सीखने की जरूरत है। अरे जनाब मुझे आदाब नहीं सीखने थी आपसे, आप मुझे बता दीजिए फिलहाल आप क्या कहेंगे, आप जवाब देंगे? नहीं, मैं फायदा ये है, आप या तो मेरे को ये बोलिए कि भाई मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, ठीक है, बात खत्म बस। अब इसमें इतनी लंबी आप बहस क्यों कर रहे हैं आखिर? बस ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसे कर लेंगे। नहीं जैसा नहीं, आपकी मर्जी है। तो जनाब मैं फिर आपसे क्या बात करूं? तो ये बताइए आप जवाब देंगे या फिर आपको मैं बाद में कॉल करूं, या कोई तीसरा ऑप्शन है तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये समझूं कि माशाल्लाह अच्छे मुसलमान हैं, तबीयत अच्छी है। नहीं देखिए ऐसा है, अच्छा तो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं समझा, फिर मेरी क्या औकात है? किसने नहीं समझा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अच्छा भाई भुतेरे थे ऐसे,
दलील औकात समझे, जिन्होंने अच्छा नहीं समझा। 2 करोड़ तो मेरी औकात क्या है? 230 करोड़ से ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं दुनिया में, इन्होंने ऐसे तो नहीं माना है हुजूर को। वो ठीक है, लेकिन और ऐसे और भी तो है ना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर आज भी एतराज करते हैं। तो हुजूर को तो लोग अच्छा नहीं मानते, फिर मेरी क्या औकात है कि आप मुझे अच्छा मानेंगे? ऐसे ही जो है ना मिर्जा साहब। चलिए खैर, आप फोन रखिए, आपके पास कोई जवाब नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको बाद में कॉल करूंगा। हाँ तो ठीक है, चलिए। यानी आपके मिर्जा ने झूठ बोला यहाँ पर कि हाँ जी 14वीं सदी में मुजद्दिद आएगा, जैसा कि हदीस सहीहा में आता है। हराना था ना मुझे बातों में। तो भाई आप जवाब ही नहीं दे रहे हो ना, तो मैं क्या करूँ बताओ? भाई आप हराना चाहते हो, देखो। अरे भाई बात हराने की नहीं है, बात हराने की नहीं है प्यारे। आप चलो देखो, मैंने आपको ऑप्शन दिए, उसमें से आपको कोई ऑप्शन पसंद नहीं आया। अब आप एक काम करो, आप मुझे इस चीज का सॉल्यूशन दो, जो आप सॉल्यूशन दोगे वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं कबूल करूंगा, ठीक है? अब आप ऑप्शन दीजिए मुझे कि हाँ जी आप क्या ऑप्शन पसंद करेंगे? जैसे कोई गेम चलाता है, मैं बनाऊंगा, आप लोग मेरे मुताबिक चलो, मैं उसके हिसाब से चलूंगा। नहीं मेरे मुताबिक नहीं, अब आप अपने मुताबिक फोन करके इस तरह से करेंगे। अरे जनाब आप मुझे बता दीजिए ना, आप बता दीजिए ना मुझे, आप क्या सॉल्यूशन निकालेंगे इसका? सोल्यूशन ये है, आप कादियान आएंगे बातचीत करने के लिए? हाँ खैर कादियान आना तो खैर पॉसिबल नहीं है मेरा। फिर जब अगर आपको तहकीक वाक़यतन करना है मिर्जा साहब के बारे में, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए आप। जी इंशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान मजीद से साबित करके दिखाए इस बात को। तो कुरान में साबित है, तो खातमुन नबीन जो अल्फाज हैं कुरान में, क्या है? तो ये किस लिए आए हैं? आयत पढ़े हैं आप भाई? पूरी आयत आपको पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं आयत? मुझे पता है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर जब पता है तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं? वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। वलाकिन नहीं कहते, यहाँ पर कहते हैं वलाकिन रसूलुल्लाह, ठीक है? जब नून के साथ रे मिलता है तो नून जो है साइलेंट रहता है, वहाँ कहता है वलाकिन रसूलुल्लाह, ना कि वलाकिन नहीं बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है ना? वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हाँ जी, नबिय्यीन के अल्फाज हैं, उससे क्या इस्तेदलाल करते हैं आप? तो इस्तेदलाल हम थोड़ा ना करते हैं, तो उलमा मुफस्सिरीन ने कर दिया ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफस्सिरीन की बात आप पर ज्यादा सादिर आती है या कुरान मजीद की बात आती है? मेरे भाई कुरान खत्मल्लाहु अला कुलूबि व अला समी, तो यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर देंगे? नहीं, ऐसा है ना, देखिए समझिए, जब कुरान के उलूम, कुरान की आयत में जब आप अपनी मनगढ़ंत तफसीर घुसेड़ेंगे तो उसका नतीजा फिर खराब ही निकलेगा। हमारी है ना जी, मनगढ़ंत है, वही अल्फाज हैं आप ही की है ना। देखिए अल्फाज तो वही हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व अल्लाह ताला ने इसको किस माने में इस्तेमाल किया, ये तो हमें मुफस्सिरीन बताएंगे ना, कि आप बताएंगे? अब जब खुदा ताला ने अपने तौर से अपने लिए फरमाया कि आना अव्वल, अपने लिए नहीं फरमाया, अपने लिए नहीं फरमाया, वो खातमुन नबीयीन जो है सरकारी दो आलम के लिए इस्तेमाल फरमाया। सुनिए बात, खातम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आखिर का लफ्ज इस्तेमाल किया अपने लिए। अब देखिए आपके कौल और फेल में तजाद पाया जा रहा है। हमारे नेमतुल्लाह साहब जाता है, नेमतुल्लाह साहब देखिए, आप नहीं पाया जाता, नहीं पाया जा रहा है। अभी आपने कहा था कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है, पहले आपने कहा कि आपके पास वक्त नहीं है, फिर आपने इतना सारा जो है बोल वचन किया, अब आप जो है कुरान शरीफ की आयत पर आ गए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि देखिए कुरान शरीफ की आयत पर मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है? उसका जो तर्जुमा, उसका जो मफहूम जो मुफस्सिरीन ने बयान किया है मैं वो मानता हूँ, ठीक है? आप भी वही मानते होंगे, वल्लाहु आलम। मुकद्दम है या हदीस मुकद्दम है? हमारे नजदीक कुरान मुकद्दम है, लेकिन हदीस कुरान से हटकर नहीं है। क्यों, हदीस में क्या दिक्कत है आपको? कुरान से हदीस से दिक्कत है आपको? अच्छा कुरान से बात करेंगे आप, तो ये बताइए फिर कुरान करीम में कितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है नाम के साथ? कितने अंबिया का जिक्र है बताइए जरा मुझे। 20 से ज्यादा। 20 से ज्यादा कितने हैं? 20 से ज्यादा मैं बताया, उससे आपको 20 से ज्यादा तो 30 भी होता है, 20 से ज्यादा तो 21 भी होता है, 20 से ज्यादा तो 1 लाख भी हो सकता है। माशाअल्लाह, तो कितने हैं? समझदार हैं, तो आपको 20 से ज्यादा मैंने बता दिया, आपको पता नहीं। देखिए ना, 20 से ज्यादा में 21 से लेके और इनफाइनाइट तक तमाम गिनतियाँ आती हैं, तो मैं कौन सी गिनती तस्वुर करूँ? वो तो आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। अरे यार आप ना, यार मसला क्या समझ नहीं आ रहा है मेरे। आप जो है बात को इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों कर रहे हैं? आखिर आप सीधा साधा क्यों नहीं बता रहे हैं मुझे कि आप कह रहे हैं कि कुरान मुकद्दम है, लेकिन आपके मिर्जा साहब अपनी हर चीज की तायद में बुखारी का नाम लेते हैं,
है ना, बिल्कुल लेते कभी हैं। फला हदीस का नाम लेते हैं, कभी फला हदीस का नाम बिल्कुल लेते लेते हैं, हैं। फिर आप उन्हीं अहादीस की किताबों को झुटलाते भी हैं। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि झुटलाते इमाम नहीं, कह रहा है, बिल्कुल झुटलाते हैं। इमाम कह रहा है कुरान कि बुखारी सबसे अफजल है और इमाम के मुकल्लिदीन कह रहे हैं कि नहीं, बुखारी की नहीं मानेंगे हम तो कुरान की मानेंगे। बताइए ऐसे कैसे चलेगा आखिर? हमारे नजदीक कुरान, सुन्नत, अहादीस ये है मियार हर चीज का। अच्छा, सुन्नत क्या और होती हर है? चीज पहले हम कुरान मजीद पर सुन्नत देखते हैं। क्या होती है? सुन्नत क्या होती है? सुन्नत का इलम नहीं है आपको। 200 साल तक जो कुरान मजीद के बाद अहादीसें जो जमा हुई उस दरमियान क्या थी? सुन्नत थी या अहादीस? नहीं, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, सुन्नत का माना क्या लेते हैं अजीब आप? हालत है। सहाबा अजीब हालत जो- नहीं है, बिल्कुल सही हालत है। सुन्नत, हाँ, सुन्नत से आपने क्या मुराद लिया यहाँ पर, मैं ये जानना चाहता हूँ तवातुर अमली। जी। तवातुर अमली। जी, तवातुर अमली। तवातुर अमली से तो क्या ये मुराद जो है आपको पता है क्या? ये जो किसको अमले कहते हैं? ये जो तवातुर अमली है, तो इसमें कौन कौन सी जात के अमल को लिया गया है? वही बता रहा हूँ मैं। पंजगाना नमाज पढ़ते थे, आजान देते जी थे। हाँ। बात चीजें ऐसी होती थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेली तौर पे करके दिखाया। एक तवातुर चल रहा था जो सुन्नत बिल्कुल जी। 10 दिन के बाद अल्फाज याद नहीं रहते। 200 साल के बाद जो अहादीस जमा हुई हैं उस हाँ दरमियान जी। क्या हुआ है? सुन्नत तो चली आ रही जी है ना। बिल्कुल जी, और क्या? सुन्नत मुतवातिरा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जारी थी, सल्लल्लाहु ये अलैहि भी खुदा वसल्लम। ताला ने फजल रखा हुआ है इस्लाम बिल्कुल में जी। और उम्मत मोहम्मदिया में। ठीक है। हाँ जी। अगर आप कहेंगे कुरान मजीद के बाद हदीस तो सुन्नत कहाँ चलेगी? पहले सुन्नत फिर हदीस। अच्छा, ये बताइए, सुन्नत को इस्तिंबात, आप इसको कहाँ से लेते हैं? सुन्नत को, कैसे सुन्नत को कहाँ से आप अखज़ करते हैं? जिस शख्स को जहाँ पर अहादीस का इल्म नहीं मिला वहाँ पर सहाबा पहुँचे, वहाँ अहादीस की किताबें नहीं थी, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों सल्लल्लाहु अलैहि कुरान वसल्लम मजीद को पढ़कर सुनाया। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेरी रविश को अपनी ज़बान मुबारक से उन्होंने बताया तो वो कहलाती है सुन्नत, सुन्नत मुतवातिरा। पंजगाना नमाज अच्छा। पढ़ना है तमाम मुसलमानों के इल्म में था। जिन लोगों के इल्म में नहीं था तो उन्होंने बताया। यह 200 साल जमा होने से पहले की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 वक्त की नमाजें हैं, आजान है, वजू के तराइक है। हदीस जमा नहीं हुई थी या हदीसें किताबी शक्ल में नहीं जमा हुई थी? किताबी शक्ल में जमा नहीं हुई थी। जी, तो आप ये बोले ना कि हदीसें जमा नहीं हुई थी। हदीसें तो थी, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन के सीने मुबारक में अहादीसें महफूज थी, लेकिन किताबी शक्ल में मौजूद नहीं थी। किताबी शक्ल में मौजूद होने का सिलसिला जो है आपका ये कूफा में रहने वाले कोई शख्स को अगर किसी उम्मत के शरई मामलात के बारे में समझना था तो वो बसरा में रहने वाले या मक्का में रहने वाले सहाबा को बुलाना था उस चीज को समझने के लिए। इस चीज को तो मानते हैं ना आप, जब उनके दिलों में मुअज़्ज़न थी ये बात। अब उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, लेकिन आपने यहाँ पर जो आपका जो बता रहा है बात करने का रवैया, तो आपके कहने का मतलब ये है कि हदीसें इतनी मोतबर नहीं है। आपकी बातों से ऐसा मेरे को फील हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आपकी बातों से फील हो रहा है ऐसा। नहीं, ऐसा है ना, बुखारी शरीफ की बहुत सारी हदीसें हैं कि जिनका आप लोग इनकार करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये हदीस ही मानी जाएगी, ये हदीस ही मानी जाएगी। बहुत सारी हदीसें बुखारी शरीफ की। देखें, आप अपने तरफ से मनगढ़ंत बातें। नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ जनाब नेमतुल्लाह साहब, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यकीन मानिए आप। ठीक है, ये बताइए मुझे, हयात ईसा अलैहिस्सलाम पर आप जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पर हदीस को क्यों नहीं मानते हैं? भाई, जब कुरान मजीद ने उसकी दलील दे दी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत पा चुके हैं। हाँ, बताइए जरा, कौन सी आयत में लिखा है, कौन सी आयत में लिखा है कि हजरत ईसा फौत हो चुके हैं? अब मैं आयत पेश करूंगा, आप उसका इनकार नहीं करेंगे। नहीं, आयत का इनकार तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो उसका माना है वो आपको मुफस्सिरीन से बयान करना होगा। अरे भाई, मुफस्सिरीन कौन से मोतबर मुफस्सिरीन है उम्मत मुस्लिमा में, वो बताओ, मैं उनकी बात बताऊं। भाई आप पेश तो करिए ना, वो तो चल जाएगा ना पता कौन से मुफस्सिरीन जो है। अच्छा, ठीक है। फीहा तहय्युना फीहा तमूतूना व मिनहा तुखरजून। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारी मैं ऐसी आपको आयतें पेश करूँगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा साहिबा के बारे में अल्लाह ताला ने
सीरा ऐसा इस्तेमाल किया है जहाँ साबित होता है कि दोनों की वफात हो चुकी है, जैसे काना या कुलानी त्वा में दोनों खाना खाया करते थे। ठीक है। और एक अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा, और रसूलन इला बनी इसराइल। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो क्या कुरान मजीद की आयत को आप हटा दोगे, कुरान मजीद से निकाल दोगे? नहीं, कुरान मजीद से आयत क्यों निकल जाएगी? अब फिर या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हटाओ या फिर कुरान मजीद की आयत, तो दो ही बातें हैं। अच्छा जी। सूरह माइदा की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया व रसूलन इला बनी इसराइल। ठीक है, बिल्कुल तो सही है। रसूलन इला उम्मत मोहम्मद या इला मोहम्मद या कुछ ऐसे अल्फाज आने चाहिए। नहीं तो ये अल्फाज तो जब आएंगे ना जब वो उम्मत मोहम्मदिया में मबूस होते, जब आते अल्फाज होंगे मबूस तो उन्हें बनी इसराइल में किया गया है ना। बात यह है कि अमेरिका में रहने वाला जो सिटीजनशिप है, जो भी वहाँ का रहने वाला शहरी है, वो हिंदुस्तान के किसी घर में क्यों अपने जो है ना वो जायदाद वगैरह की मिल्कियत का ऐलान करेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब कौमें बनी इसराइल मबूस हुए हैं तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला जो है कौमें मोहम्मदी की तरफ निस्बत क्यों करेगा? कि वो आयत अल्लाह ने जहाँ पर उन्हें मबूस किया, क्या कौन सी आयत? कोई आयत तो पेश करो, सिर्फ जबानी थोड़ी बोलने से बात नहीं, मतलब किस ताल्लुक से आयत पेश करूँ, किस ताल्लुक से? यही आपकी ईसा अलैहिस्सलाम आने के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में तो बताओ ना कोई आयत। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में, जी। तो मतलब कुरान से पेश करेंगे तभी आप मानेंगे? तो आप यानी कि कुरान से पेश करेंगे तभी मानेंगे, हदीस नहीं मानेंगे? पहले कुरान फिर हदीस। नहीं, अगर कुरान, यार मुझे बताइए, अगर हदीस पेश करें तो उससे आपको तकलीफ क्या है? हदीस को मानेंगे उससे जब कुरान की आप कोई दलील पेश करेंगे, फिर हदीस पेश करें। आप कुरान की दलील पेश जी नहीं जी करते। देखिए आपके सुनिए, नजदीक कुरान अभी मुकद्दम है, हदीस मुकद्दम है। अरे जनाब, मुकद्दम यहाँ पर मुकद्दम की बात नहीं हो रही है, समझे कि कौन मुकद्दम है कौन गैर मुकद्दम है। बात यहाँ पर ये हो रही है, नाउजुबिल्लाह वाली क्या बात है इसमें? क्योंकि कुरान मुकद्दम है। अरे मेरे प्यारे, मैंने क्या बोला? यहाँ पर इस चीज की बहस नहीं हो रही है ना, तो इसमें नाउजुबिल्लाह वाली कौन सी बात आ गई? नाउजुबिल्लाह जब बोलते, जब मैं बता रहा हूँ, नाउजुबिल्लाह आप जब बोलते कि जब मैं हदीस को कुरान पर मुकद्दम बोलता, तब आप नाउजुबिल्लाह बोलते। आप कहते हैं मुकद्दम वाला सवाल ही नहीं है, तो बिल्कुल ना, यहाँ पर नहीं है ना मुकद्दम वाला सवाल। मुकद्दम क्योंकि कुरान करीम में किसी भी आयत में इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके। मसलू में शामिल है कुरान क्या? कुरान मजीद के अल्फाज वही मतलू में शामिल है आपके नजदीक? या जनाब, आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि कुरान और अहादीस ये दोनों के दोनों हमारे नजदीक शरई हुज्जत हैं, समझे? इसमें से किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि जी एक को छोड़ेंगे दूसरे को मानेंगे या दूसरे को छोड़ेंगे पहले को मानेंगे। देखिए, ऐसा हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। आंख पे लग रही इलाज आप घुटने का कर रहे हो। सवाल मेरा ये है कि कुरान की कोई ऐसी आयत पेश करें जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात साबित होती हो या हयात वफात साबित होती हो, तो जनाब मन जब उनकी वफात का कहीं जिक्र ही नहीं है और बुखारी शरीफ की और दीगर अहादीस की मुतअद्दिद अहादीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आने का तज़किरा मौजूद है, तो इससे ये साबित होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मसला है वो इस्तिस्ना है। मेरी ट्रेन भी है, 3:30 बजे निकलना है। अच्छा, निकलना है आपको? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप निकलिए, कोई बात नहीं है किसी इलाके में। ठीक है, और कोई बात नहीं है, तहकीक करें। और मुझे जी देखिए ना, लेकिन देखिए तहकीक वाली जब होगी ना जब आप लोग बात करेंगे, जैसे आप लोग बात नहीं करते सही से। नहीं, ऐसे जल्दबाजी में थोड़ी होते हैं, सब्र का दामन। तो जनाबे मन नेमतुल्लाह साहब देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, एक सीधी सी बात है, अगर आपके पास वक्त है तो आप बात करिए, नहीं है तो आप बोल दीजिए भाई मेरे पास अभी वक्त नहीं, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। इतने से बात खत्म होती है। क्या नाम है ना? रफीक, मोहम्मद रफीक सर। चलें, अच्छी बात। हाँ जी, इंशाल्लाह बात, ठीक है ना? चलिए इंशाल्लाह, बाकी मैं इंशाल्लाह आपसे बोलिए।